तो स्टार्ट करते हैं। सी सेट के पेपर देखेंगे। सी सेट में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 1. Direction for the following 5 items. Read the following 2 passages and answer the items that follow each passage. Your answer to this item should be based on the passage only. फर्स्ट है हमारे पास पैसेज नंबर 1. इन द रिसेंट टाइम्स इंडिया हैज़ ग्रोन फास्ट नॉट ओनली कंपेयर टू इट्स ओन पास्ट बट ऑल्सो इन कंपेरिजन विथ अदर नेशन, बट देयर कैन नॉट बी एनी रूम फॉर complacency because it is possible for the Indian economy to develop even faster and also to spread the benefit of this growth more widely than has been done thus far. Before going into detail of the kind of microstructural changes that we need to conceptualize and then proceed to implement, it is worthwhile elaborating on the idea of inclusive growth that constitute the defining concept behind this government various economic policies and decision. A nation interested in inclusive growth views the same growth differently depending on whether the gain of the growth has happened primarily on a small segment or shared widely by the population. The latter is cause for celebration but not the former. In other words, the growth must not be treated as an end in itself but as an instrument for spreading prosperity to all. India's own past experience and the experiences of other nations suggest that growth is necessary for eradicating poverty, but it is not sufficient condition. In other words, policies for promoting growth need to be complemented with policies to ensure that more and more people joining in the growth process, and further that there are mechanisms in place to redistribute some of the gain to those who are unable to partake in the market process and hence get left behind. A simple way of giving this idea of inclusive growth a sharper form is to measure a nation progress in terms of the progress of the poorest segment. For instance, the bottom 20% of the population. One could measure the per capita income of the bottom quintile of the population and also calculate the growth rate of income and evaluate our economy success in terms of these measures that pertain to the poorest segment. This approach is attractive because it does not ignore growth like some of the older heterodox criteria did. It simply looks at the growth of income of the poorest section of the population. It also ensures that those who are outside of the bottom quintile do not get ignored. If that were done, then those people would in all likelihood drop down into bottom quintile and so would automatically become a target of our policies. Hence, the criteria being suggested here is a statistically summing up of the ideas of inclusive growth, which in turn leads to two corollaries to which that India must strives to achieve his growth is high growth and that we must work to ensure that the weakest segment benefit from the growth. तो इसको ये जो अपने पास पैराग्राफ जो दिया है कॉम्प्रिहेंशन हमको दिया है उसको कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ लिया। अब इसमें हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि द ऑथर सेंट्रल फोकस इज ऑन applauding India's economic growth not only against its own past performance but against the other nation. ऐसी कहीं बात नहीं कही गई है। Emphasizes the need for economic growth which is the sole determinant of country's prosperity. No, economic growth नहीं है। Emphasizing inclusive growth where the gain of growth are shared widely by the population. हाँ, ये बात करता है कि इसकी बात करता है गवर्नमेंट क्या करता है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है कि शेयर करना है अपने को क्योंकि भाई अगर हमारे पास यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है इसमें हमारे पास गवर्नमेंट जो अपने पास ऑथर है यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ये इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करना चाहते हैं है ना कि देखो भाई अगर देखो यहाँ पे जो टर्म है इंक्लूसिव ग्रोथ मैं निकालता हूँ शेयर करना है ग्रोथ को बिकॉज देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ द आइडिया ऑफ व्हाट द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ शार्पन फॉर्म ऑफ मेजर ठीक है दिस इज द आंसर हियर
Okay, so the answer is what? Answer is this, B. सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही कॉम्प्रीहेंशन है ना, और इसमें हमारे पास वही कॉम्प्रीहेंशन है, और उसी कॉम्प्रीहेंशन में हमें पूछा है कि क्वेश्चन ने कि ऑथर सपोर्ट पॉलिसीज विच विल हेल्प, ऑथर कौन से पॉलिसीज को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला कि ऑथर सपोर्ट पॉलिसीज विच विल हेल्प डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ, डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक गेन्स टू दोज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, यहाँ पे जो फोर्थ है ये आंसर होगा, पुट एन एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखो ये जो बोल रहा है कि देखो हमको क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो फोकस करना ही करना है, बट जो इकोनॉमिक गेन है उसको क्या करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। बिकॉज अगर यहाँ पे हमने सपोज क्या किया, जो गरीब है उनको हमने पैसा दिए, और कुछ लोग जो है गरीबी से थोड़ा सा ऊपर है उनको हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो भी क्या करेंगे, बाद में गरीबी के नीचे चले जाएंगे, तो इनके लिए भी हमको देना पड़ेगा। तो हम क्या करना है, जो गरीब है उन पर तो फोकस करना ही पड़ना है, जो गरीबी के आसपास है उन पर ही फोकस करना कि वो गरीबी पे ना पहुंच जाए। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूटिंग। और ये जो ऑथर है वहाँ पे कहा भी है कि देखो भाई लेफ्ट बिहाइंड, ये जो लाइन है देखो यहाँ पे गेट लिखा है, बॉटम क्विल्टाइल डू नॉट गेट इग्नोर, ठीक है ना, आउटसाइड द बॉटम क्विंटाइल, है ना। इट ऑल्सो इंश्योर दैट दोज हु आर आउटसाइड द बॉटम क्विंटाइल डू नॉट गेट इग्नोर, इफ दैट वेर डन देन दोज पीपल वुड ऑल लाइकली टू ड्रॉप इनटू द बॉटम क्विंटाइल एंड वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ डायरेक्ट टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि दूसरे को भी इग्नोर नहीं करना है, जो बॉटम पे है तो उनको भी करना है, जो बॉटम नहीं उनको भी इग्नोर नहीं करना है, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो द डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक गेन टू दोज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। नाउ इसी क्वेश्चन में इसी कॉम्प्रिहेंशन में हमसे क्वेश्चन वही है अपने पास पैराग्राफ, उसी में हमारे पास ऑथर ने पूछा है कि क्या पूछा है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बट देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी ग्रोथ, ठीक है ना, नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, विच इज स्टेटमेंट गिवन अप इज करेक्ट। क्या लिखा है, ग्रोथ इराडिकेट्स पॉवर्टी, गलत है, ऐसा नहीं दिया हुआ है। एंड ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी, ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही बोला है कि ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छा ग्रोथ हो। ये वाला जो है, ये वाला है कॉम्प्लेसेंसी वाला, कौन सा ओके देखो ये बट देर इज नो कॉम्प्लेसेंसी एनी रूम ऑफ कॉम्प्लेसेंसी पॉसिबल फॉर, ये देखो यहाँ पे ओके, नेशन ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर इरेडिकेटिंग बट नॉट सफिशियंट, ठीक है ना, ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट, ठीक है। सो दिस पहला इसीलिए गलत हो गया। और दूसरा वाला क्या है, ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी, नहीं, ग्रोथ डज नॉट हैज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, दोनों गलत हो जाएंगे। हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। ओके, एक और पैराग्राफ है, It is easy for the government to control state-owned companies through nods and wings. So what really need to be done as first step is to put petrol pricing on a transparent formula. If the price of crude is X and the exchange rate is Y, then every month or fortnight the government announce a maximum price of petrol which anybody can work out from the X and Y. The result has to be worked out to make sure that the oil marketing can in general cover their cost. This will means that if one company can innovate and cut cost, it will make greater profits. Hence firms will be more prone to innovate and be efficient under this system. Once the rule is announced, there should be no interference by the government. If this is done for a while, private companies will re-enter this market, and once a sufficient number of them are in the fray, we can remove the rule-based pricing and leave it truly to the market. ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, हमको आंसर देना है इसके बेसिस पे, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज
An oil company can make greater profit if the transparent formula for petrol pricing is announced every fortnight or month by promoting sale, undertaking innovation, cutting short cost. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनोवेट एंड कट कॉस्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केटिंग ला सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज व्हाट, प्रमोटिंग, अंडरटेकिंग इनोवेशन एंड कटिंग कॉस्ट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रमोटिंग इट सेल गलत बात है। सेलिंग इट इक्विटी शेयर एट हायर प्राइस, कहीं बात नहीं की। देखो कभी भी कॉम्प्रिहेंशन आए वो सही होगा, डिपेंड किस बात पे करेगा कि क्या उसके बारे में मेंशन हुआ है कि नहीं, कहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पे। अगर उसके बारे में कॉम्प्रिहेंशन मेंशन नहीं है तो वो सही हो, अगर स्टेटमेंट सही भी लगे तो नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो आंसर देना है वो कॉम्प्रिहेंशन पे बेस देना है। सो आंसर इज व्हाट 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। यही वही अपने पास वही पैसेज है, बट दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल प्राइसिंग मार्केट इफ अ ट्रांसपेरेंट रूल्स बेस्ड petrol pricing exists, if there is no government interference in the oil producing market, subsidies are given by the government, regulation of antitrust are removed। ये दोनों की बात की गई है, इन दोनों की बात नहीं की गई है। तो हमारे पास कैट हमसे पूछा है, कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ओनली। ओके, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, ओके हमको बोला है कि यहाँ पे ए क्या है, ए स्टैंड फॉर माइनस, बी स्टैंड फॉर प्लस, सी स्टैंड फॉर डिवाइड एंड डी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सी मतलब यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, ये डी मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, एंड बी मतलब प्लस आ जाएगा, बी मतलब प्लस आ जाएगा, ए मतलब माइनस आ जाएगा, डी मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब माइनस आ जाएगा। रूट ऑफ 625, 25 का रूट होता है तो 25 प्लस अंडर रूट 576 कितना होता है 24 प्लस 153 डिवाइड बाई 3 इंटू अंडर रूट 441 कितना होता है 21 प्लस 4 प्लस 1। तो हमको बोर्ड मास पता होना चाहिए, BODMAS। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा 153 डिवाइड बाई 3 कर दिए। इसके नीचे में भी तो कुछ है, अंडर रूट 529 क्या होता है, अंडर रूट 529 क्या होता है, शायद ये 23 का होता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 2 3 जा 6, 2 4 जा, हाँ ये हो जाएगा 23 माइनस अंडर 225 15 इंटू 2 माइनस 2। ओके, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया हमने, अंडर रूट 153 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, ये 1 जा, ये 5 जा, 51 होगा, ये 51 हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 51 इंटू 21 करेंगे, 1 1 0 2 5 2 5 10 सॉरी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1071, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया अपने पास, ये हो गया 1071 हो गया, ये हो गया 5, ठीक है ना। इसको 24 को इसमें ऐड कर दिया, 5 को इसमें ऐड कर दिया 30, और 24 यहाँ पे ऐड करने से कितना हो गया, ये 4 दे दिया 75। ओके, सो इसको मैं ऐड कर देते हैं इसमें 25, 30 और 24 54, 1071 54 5 12 का 2 1 कैरी 1125 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये ऊपर का पूरा कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा, 1125। उसके बाद नीचे के दिखते हैं, नीचे में सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में क्या आता है, पहले मल्टीप्लाई आता है, तो 15 टू जा 30, ठीक है। सो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस मतलब 32 माइनस 23, ये कितना जाएगा
12 9, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1 1 2 5/9, 9 1 जा 9 1 जा 22 2 जा 45 5 जा, तो -125 हो जाएगा आंसर। -125 कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इसमें हमसे पूछा है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। रॉन्ग टर्म बताना है, तो 84 112 177 303 524, यहाँ पे 84 प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 कर रहा है, तो कितना हो रहा है? 2 का क्यूब कितना होता है? इसमें कुछ ऐसा ही वाला है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू इसको बाद में सॉल्व किया जाएगा इसको। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू, ठीक है। मैराथन की एक तरह से रेस है, मैराथन एक तरह से रेस है, तो हमारे पास जो हाइबरनेशन एक तरह से स्लीप तो है। हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, हाइबरनेशन क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप बोलते हैं। तो हाइबरनेशन इज अ टाइप ऑफ स्लीप, सो द आंसर इज व्हाट दिस। भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 फॉलोइंग बाय अ क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द चीपेस्ट एंड द कॉस्टिएस्ट हेडफोन इज 120, ठीक है। चीपेस्ट का सपोज प्राइस x है, कॉस्टलीस्ट का y है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? x माइनस वाई दिया है 120। कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन आर इन अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंस सबका सेम होगा। सपोज ये जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस ये है, तो हमारे पास जो x होगा वो क्या होगा? रुक जाओ देखेंगे। प्रिया ब्रॉट 3 हेडफोन एट डिफरेंट प्राइस फॉर 180, 3 हेडफोन खरीदे 140 रुपये का डिफरेंट प्राइस है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉस्टलिएस्ट हेडफोन, ठीक है। सो अगर हमको पता है x माइनस वाई कितना है 120, ठीक है, और हमारे पास तीन चीज़ें, तीन डिफरेंट ए बी सी तीन चीज़ें खरीदी, और इसका प्राइस कितना रहा है 840। हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक मीन में है बोला है, ठीक है। सपोज इनका डिफरेंस अगर हमने मान लिया x होगा, तो a को मैंने क्या डिफरेंस सपोज इनका m होगा m, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक को m माना, x को जो क्या होगा ओके सॉरी अरिथमेटिक मीन में हुआ ना, तो जो x होगा x प्लस m, आगे हो गया। एक होगा m, ओके। तो तीन हेडफोन में से ना, तीन हेडफोन में से जो बीच वाला, सपोज एक हेडफोन का प्राइस a है, ओके सॉरी देखो, तीन है ना, तो इसमें से एक तो x होगा, एक तो y होगा, और एक तो सपोज z है। तो ये z हमारे पास है, x को मैं लिख सकता हूं अरिथमेटिक मीन में है ना,
सपोज इन दोनों का गिव में ए है, ए कुछ ऐसा एरिथमेटिक मीन है, बीच बीच में डिफरेंस ए है, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ जेड माइनस ए, वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ जेड प्लस ए। ठीक है, तो ये ए और ये खत्म हो जाएंगे, 3z इजिकल टू क्या हो जाएगा 840। सो जेड बराबर क्या हो जाएगा 840/3, 8 1 जा 8 3 1 जा 3 2 जा 6 24 8। तो जेड जो आ रहा है वो कितना रहा है 280 आ रहा है, मतलब एक समान कितना है 280 है। ठीक है, जब z 280 आ गया तो z 280 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी सबका प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन ने पूछा क्या भाई, S1 alone is sufficient to answer the question। नहीं भाई, S1 के साथ S2 चाहिए, अगर अरिथमेटिक मीन में नहीं है तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा। S2 alone is sufficient to answer the question। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कॉस्टलीस्ट हेडफोन। अच्छा, कॉस्टलीस्ट हेडफोन का हमको प्राइस बताना है, ठीक है ना, कॉस्टलीस्ट हेडफोन का प्राइस बताना है। तो यहाँ से पता कर सकते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशन है। एक ये हो गया, हम लोग कॉस्टलीस्ट मतलब एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, एक्स बताना है तो हमको पता है एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस ए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और वाई की वैल्यू क्या है जेड माइनस ए है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू डाल देंगे, है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारे पास एक्स वाई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर ये होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गो टुगेदर आर सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट बोल रहे, नो इट इज सफिशिएंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर नेसेसरी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। हमको मिसिंग नंबर बताना है यहाँ से 9, 11, फिर 28 है, फिर 48 है, तो मिसिंग नंबर क्या होगा 22 होगा, बिकॉज 2 का डिफरेंस आ रहा है। जब हम सोचें तो यहाँ पे 9, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 20, 2 का डिफरेंस है ना, बस उसी प्रकार इन दोनों में क्या का डिफरेंस होगा 2 का डिफरेंस होगा, इन दोनों में कितना का डिफरेंस होगा 2 का डिफरेंस होगा, तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। If the letter of the word Sachin are arranged in all possible way and these words are written as per order in the dictionary, then the word Sachin appear at serial number। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है ना। the word Sachin are arranged in all possible ways, ठीक है, and these words are written as per order in dictionary। सचिन में हमारे पास ए आता है, SACHIN है, उससे पहले क्या आता है ए आता है, फिर सी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है, फिर एस आता है। तो ये अपने पास 6 लेटर्स हैं सचिन के अंदर, ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ। तो ये 6 लेटर्स जो हैं सचिन के अंदर, इस 6 लेटर को हमारे पास डिफरेंट अरेंज करना है, तो कितने लेटर बनेंगे। तो पहले तो हम ए को पहले रखेंगे, ठीक है ना, ए को जब रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ए को रखेंगे, ठीक है ना, ए के जितने ही बनेंगे, सो इसके कितने बनेंगे ए 5 इंटू ये 5, इसके पीछे 5 है ना, 1 2 3 4 5 इंटू 5, इसको बोलते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, इसको बोलते हैं ऐसे 5 ये। सो एक तो हमारे पास ए से बन जाएगा, उसके बाद हमने सी को आगे रख के बनाया, उसके पीछे वाले अरेंज किया,
एच को आगे रखा, उसके पीछे वाले को अरेंज किया, आई को आगे रखा, एन को आगे रखा, एस को आगे रखा। वैसे अपने पास 5 रहेंगे, 5, ठीक है, 6 है डिजिट है, बस 5 चीज़ ऐसे सीक्वेंस बन पाएंगे। सो हमारे पास क्या होगा, 5 ऐसे बनेंगे। एक तो ये हो गया, एस के लिए हो जाएगा, तो एक सॉरी ये मतलब ए के लिए एक होगा ऐसे, एक को रखेंगे और उसके पीछे 5 कैसे रखेंगे, तो एक हो गया। ऐसे 5 होंगे हमारे पास, एक ए के लिए होगा, एक सी के लिए होगा, एक 5, एक ए के लिए 5A, सी के लिए 5A, एच के लिए 5A, आई के लिए 5A, एन के लिए 5A और एस के लिए 5A। टोटल 5 × 5 ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 20, 20 × 6 120, तो 5 × 120 = 600। तो 600 डिफरेंट लेटर बनेंगे। तो सचिन अपेयर एट द सीरियल नंबर, तो सचिन कौन सा में आएगा, वो सचिन आएगा 600 बनेंगे तो उसके बाद आएगा सचिन। सचिन कितने में आएगा, 601 नंबर पे आएगा, 601 नंबर पे। Okay, direction of the following 3 items. Read the following data carefully and answer the question that follows. 5 box of different color are placed. ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना चाहिए भाई, पीछे से पढ़ना चाहिए। 1 box is placed between the red box and yellow box. तो रेड बॉक्स और येलो बॉक्स, 5 बॉक्स हैं बोल रहा है, 5 बॉक्स, ठीक है ना। पांच बॉक्स हैं, 1 2 3, ओके। 5 बॉक्स में हमसे बोला है 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन रेड बॉक्स एंड येलो बॉक्स। इसको हटाते पहले लिख देना कि देखो, एक रेड बॉक्स है, एक येलो बॉक्स है, और रेड और येलो के बीच में एक डब्बा है, ठीक है। उसके बाद क्या पीछे है, ब्लैक बॉक्स इज नॉट प्लेस नियर ग्रीन एंड येलो बॉक्स, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स जो है वो ग्रीन और येलो के पास नहीं है, तो ये हो सकता है ब्लैक बॉक्स इज नॉट प्लेस नियर ग्रीन एंड येलो बॉक्स। Five boxes of different color are placed above one, okay, in a stack. Pink box is placed below black box. बात बढ़ेंगे। ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो येलो बॉक्स, ठीक है ना। तो ये येलो बॉक्स के नीचे क्या रखा गया है, ये लाइन पढ़ रहा हूँ, ग्रीन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो येलो बॉक्स। तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स रखा हुआ है, या फिर अगर इसको मैं उल्टा बनाऊँ तो ये अभी ऐसे भी हो सकता है, ये रेड बॉक्स हो, है ना, ये रेड हो, वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन रेड बॉक्स एंड येलो बॉक्स, ठीक है ना। रेड बॉक्स और येलो बॉक्स के बीच में एक बॉक्स रख सकता है, ये भी हो सकता है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो, ठीक है। एंड ब्लैक बॉक्स इज नॉट प्लेस नियर ग्रीन एंड येलो बॉक्स, ग्रीन और येलो बॉक्स के पास रेड ब्लैक बॉक्स नहीं है। सपोज करो ब्लैक बॉक्स यहाँ पे है, ये ब्लैक बॉक्स यहाँ पे है, ये हो गया। पिंक बॉक्स इज प्लेस बिलो द ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के नीचे है पिंक बॉक्स, तो ये हो जाएगा आंसर कि ब्लैक बॉक्स के नीचे पिंक बॉक्स ऐसे रख दिए, तो ये जो था ना पिंक बॉक्स इज बिलो डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नॉट, देखो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स इज प्लेस बिलो दी येलो बॉक्स बट नॉट नियर दी रेड बॉक्स। तो ग्रीन जो है रेड के पास नहीं है, ग्रीन जो है रेड के पास नहीं है, तो ये वाला हट गया क्योंकि साथ बाद में ये लिखा हुआ है, तो ग्रीन रेड के पास नहीं है, ग्रीन रेड के पास नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये वाला असली सीक्वेंस लग रहा है, ये वाला असली सीक्वेंस लग रहा है अपने को। उसके बाद हमको पूछा है द बॉक्स विच इज द बॉटम, बॉटम में कौन सा है, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला आंसर हो जाएगा। ओके, तो ब्लैक था, रेड था, पिंक था, येलो था, ग्रीन, BRPYG, BRPYG, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिलो पिंक, BRPYG, ये था ना BRPYG। तो प्लेस्ड बिलो पिंक, पिंक के नीचे कितने हैं, पिंक के नीचे 2 बॉक्स हैं, BRPYG,
विच द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड, ओके, BRPYG, BRPYG, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड अबव रेड बॉक्स, रेड बॉक्स के ऊपर कौन सा रखा हुआ है, ब्लैक बॉक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 92581473 are arranged in descending order, okay, then what will be the difference between the digit which, difference पूछा है हमको, क्या पूछा है, difference between the digit which are fourth from the right end, right end से fourth, 1 2 3 4, तो एक नंबर है difference, and third from the left end, third from the left end, 1 2 3, okay, which are the, okay, which are difference between digits, fourth from the right end, 1 2 3 4 1, and third from the left in new arrangement, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया ब्रो, इनको असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े अरेंज में अरेंज तो करो पहले। सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, 6 है क्या, नहीं है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो पूछा है फोर्थ फ्रॉम द राइट इन, 1 2 3 4 मतलब 5, एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन 1 2 3 -3 मतलब 2 आ जाएगा डिफरेंस। ओके, वॉल क्लॉक शो 1622, व्हाट विल इट शो इन द प्लेन मिनट, कैसे निकालते हैं, ट्रिक क्या है इसकी, अगर ये अपने को किस फॉर्मेट में दिया है, 16:24 दिया, तो हमारे पास क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे हावर से, हावर में कितना होगा यहाँ पे 24, ठीक है, और 22 को माइनस करेंगे मिनट से, मिनट्स में कितना है ये वाला, ठीक है, तो 60 नहीं होगा यहाँ पे, ये 24 था, लेकिन हमारे पास एक इधर चला गया, 23 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 23 में 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 60 में 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इधर बचेगा 5 में 2 बचेगा 38, तो 5:38 देखेंगे अपने को, अगर वो प्लेन मिनट में देखेंगे तो उसको 5:38 दिखेगा। ओके, क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज 9th to the left, 9 to the left of 21st from the left end, 21st from the left end कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लेफ्ट इंड के पूछा भाई, 21st from the left end, so left end 21st, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21st जो डिजिट है वो क्या है 6 नंबर। 9 जी का पूछा, फॉलोइंग डिजिट इज 9 टू द लेफ्ट, इसके नाइन्थ कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां क्या है तीसरा, 3 नंबर डिजिट जो है लेफ्ट में है, इसके 9th नंबर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, हमको इस सीरीज में रॉन्ग टर्म बताना है। देखो इसमें तुक्का भी लगा तो ऐसे लगाना चाहिए, यहाँ पे देखो ये डिजिट कम हुआ ना, यहाँ पे रेंज कितना कम हो रहा है ना, यहाँ पे भी कितना कम हो रहा है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, बट इसमें देखो ट्रांजिशन देखो यहाँ से इतना, दोनों में कितना कम नहीं हो रहा है उतना ब्रो, सो दिस आंसर इज 104, ये ऑड है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्यों है, बट यहाँ पे ऐसा अजीब जो गरीब जगह है ना तो वहाँ पे लगना चाहिए, और मतलब हमें चीज़ें दिमाग नहीं लगाना होता है, यहाँ पे सिंपल से सोचना होता है, इसको आगे बढ़ जाना होता है। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन क्लास, ब्रदर, मेल एंड डांसर, मतलब जो मेल आदमी है वो उसका ब्रदर है और वो डांस भी करता है थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा होगा, देखो ये डायग्राम तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक आधा ब्रदर है
थोड़ा मोड़ा ब्रदर है, थोड़ा मोड़ा डांस करता है, ऐसे नहीं होगा। ये क्या हो गया भाई, ये मेल है, कुछ आधा डांसर है, कुछ मेल, ये नहीं होगा। हाँ ये वाला सही होगा, बिकॉज इसमें देखो ये मेल है, उसका ब्रदर भी है, ठीक है ना, एक मेल आदमी है, एक मेल आदमी है, ये ब्रदर भी है और थोड़ा मोड़ा डांस भी करता है, तो ये आंसर हो जाएगा किसका, ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका। ओके, इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, एक्स स्टैंड, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड डी स्टैंड फॉर डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। ए क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बी क्या है अपने पास माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सी क्या है अपने पास मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्या है यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो बोर्ड मार्क्स हमको पता होना चाहिए, BODMAS। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला क्या है 5 में 2 डिवाइड किया 2.5 तो बचेगा 2, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 में उसके बाद मतलब 32 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे मतलब किसको 95 और 75 को ऐड करेंगे, ठीक है। 95 और 75 को ऐड करेंगे, 0 1 कैरी 8 और 1 कैरी 170 हुआ। 170 को अब माइनस करेंगे 64 से, 170 को जब माइनस करेंगे 64 से कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10, 10 में 4 बचेगा 6, तो 106 हो जाएगा आंसर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, कंसीडर द फिगर गिवन बिलो टू फिट द क्वेश्चन मार्क, करेक्ट आंसर इज। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऐसा मूव कर रहे थे, ये जो है ना, ये वाला जो एरो है, ये हमको यहाँ पे क्या होगा ये बताना है हमको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे जो ये है इस तरह से मूव कर रहा है, और ये जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से आगे हो गया, यहाँ पे आ गया। सो ये जो ये वाला जो है कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये वाला इधर से आ रहा है तो ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला ब्लैक वाला हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो एरो स्क्वायर ये वाला लग रहा है आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन है, कंसिडर दैट ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, ए क्या है बी से बड़ा है, सी इज टॉलर देन ए, डी इज टॉलर देन सी, इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मतलब ये सबसे टॉल है। उसके बाद ए अगर मैंने मान लिया तो सबसे नीचे सी से छोटा है, सी से बड़ा कौन है डी, और सी किससे बड़ा है ए से, ठीक है, और ए किससे बड़ा है बी से, और सबसे बड़ा क्या है ई है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, बी से बड़ा ए है, ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। ओके, सो इफ दे आर मेड टू सिट अबव ऑर्डर एंड देयर हाइट विच विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, मिड पोजीशन में कौन है सी है। ओके, व्हाट इज द मिसिंग नंबर एट क्वेश्चन मार्क ऑफ द मैट्रिक्स, तो मिसिंग नंबर क्या होगा यहाँ पे, ये 336 दिख रहा है ना, 856 दिख रहा है ना, 1090 दिख रहा है ना, 22 दिख रहा है ना, 1 और 0 दिख रहा है। तो जरा सोचना कि इस रो में ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है। 3 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, इसमें 10 का मल्टीपल भी है, 2 तो है ही है, ठीक है ना। एक चीज़ बस 0 की मिसिंग है इस टेबल में, ठीक है ना, एक चीज़ 0 की ही मिसिंग है इस टेबल में, लेकिन 0 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, बिकॉज 5 के मल्टीपल में आता है ये। ओके, बट देखो यहाँ पे तो चांसेस, ये तो होगा नहीं दोनों, ये हो सकता है फिर हो सकता है। देखो इस 50 के होने 5 होने चांसेस कम है, 5 का कोई 4 into वाला ऐसा ही नहीं है यहाँ पे, बट 0 वाला है जोड़ी। देखो 0 1 0 था, यहाँ पे 20 और 0 हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा 0। Four card pieces of specific shapes are shown in the following figure. Which of the following figure given can be the formed by joining this piece? तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बन जाएगा, इसके ऊपर मैं इसको ऐसे उठा दूंगा तो ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
आंसर हो जाएगा, हाँ ये बन सकता है, क्योंकि देखो ये टेढ़ा वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे भी ये थोड़ा अजीब सा शेप ट्रेपेजियम टाइप का, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। विंडो इज टू पैन, मतलब विंडो जो कांच का होता है उसके छोटे मोटे शीशे जो होते हैं उसके पार्ट होते हैं, उसी प्रकार बुक बड़ा चीज उसके पेजेस जो है छोटे मोटे पार्ट हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेजेस। ओके, if every alternative letter of alphabet of English alphabet from B onward is written in lower case small letter including B, मतलब B को भी हम स्मॉलर लेटर में लिख रहे हैं, B फिर C फिर D फिर E फिर F फिर G फिर H फिर I फिर J, A B C D E F G H I J K L, सॉरी ब्रो यहाँ पे ना बी छोटा था, फिर सी के बाद डी फिर ई फिर एफ फिर जी फिर एच फिर आई फिर जे छोटा फिर के फिर एल फिर एम फिर एन फिर ओ फिर कैपिटल ओ है फिर पी फिर क्यू फिर आर फिर एस फिर टी फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई छोटा जेड। जुलाई को ऐसे लिखना है, जुलाई में छोटा जे आएगा, छोटा जे छोटा जे छोटा जे छोटा जे जे यू 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 कैसे आएगा, कैपिटल यू कैपिटल यू कैपिटल यू, तो जे यू, फिर एल आ जाएगा छोटा एल छोटा एल छोटा एल, फिर वाई बड़ा एल वाई कैपिटल वाई। Then how is the first month of the second half of the year is written? Consider the following table given below in which the number bears certain relations among themselves along the row. Which one of the following number is the missing number indicated above by x? तो इसमें देखो यहाँ पे एक इसमें सम देखना चाहिए हमको कि इतना सम क्या हो रहा है, इतना सम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं तो इसका सम तो सेम हो नहीं सकता। यहाँ पे लग रहा है सेम, इधर सेम सेम नंबर लग रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो नंबर कितना सम हो रहा है, इसका नंबर का सम कितना हो रहा है 13, और इसको एक दे दिया तो कितना 12, 12 इसको 8 दे 30, 30 30 मतलब 60 इसका सम हो रहा है, ठीक है ना। इसका सम कितना हो रहा है 27, इसका भी सम 60 हो रहा है, तो इसका भी सम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। सो 19 और 33 को मैंने जब ऐड किया तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 2 एक केली 52, मतलब ये हो जाएगा 8, तभी क्या होगा सम 60 होगा। तो आंसर इज दिस। इन द सीक्वेंस 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 हाउ मेनी 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएट प्रोसीड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, मतलब 5 के आगे 3 नहीं होना चाहिए, तो इसी की जगह में 5 के आगे 3 नहीं है और इसके बाद में 7 होना चाहिए, तो 7 है। इस 5 के आगे में 3 है तो ये 5 नहीं कैलकुलेट करेंगे, इस 5 के आगे में 3 है तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो एक ही 5 ऐसा है जिसके आगे में क्या है, जिसके पहले 3 नहीं है और बाद में 7 है। पिक आउट दी ऑड वन फ्रॉम दी फॉलोइंग, ऑड बताना है इसमें, ऑड क्या लग रहा है, इसमें ऑड क्या है, देखो 15 5 है 75, 17 5 जो कितना होता है 17 इंटू 5 5 है 75 को 5 3 कैरी है, 5 75 का 5 3 कैरी 5 1 5 85 होता है इसका, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑड है यहाँ पे, क्योंकि 13 को 5 से 65 होगा, 19 को 5 से 95 होगा, तो ये ऑड 1 है। प्रिंस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू, सॉरी प्राइस इज नॉट सेम थिंग एज वैल्यू, प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू, सपोज दैट
on a day the price of everything with coal, bread, postage stamp, a day labor, the rent of house etc. were double, ठीक है. Price then would certainly rise but value of all thing except one would not, ठीक है ना, सब चीज़ का वैल्यू बढ़ जाएगा. The writer want to say that if price of all things are double, प्राइस के बढ़ने के साथ क्या हम लोग 100 रुपये का दो बार छाप देंगे तो क्या चीज़ें सस्ती हो जाएगी? ऐसा नहीं होगी. प्राइस तो बढ़ जाएगा बट जो वैल्यू था मनी का वो तो आधा हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स वुड रिमेन कांस्टेंट, गलत है. द वैल्यू ऑफ थिंग्स सोल्ड वुड बी डबल, गलत है. वैल्यू डबल नहीं होगा, वैल्यू आधा हो जाएगा. वैल्यू मतलब सेम रहेगा भाई. वैल्यू ऑफ ऑल थिंग्स गेट डबल्ड एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ थिंग्स वुड थिंग्स बॉट वुड बी हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ मनी वुड बी हाफ, ठीक है. वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. ओके, हमसे क्वेश्चन पूछा है विथ रेफरेंस टू फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी विदाउट रिट्रेसिंग यू एंड वी. तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, यहाँ पे 3 रास्ते हैं. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 18, तो 18 रास्ते हो जाएंगे यहाँ पे. तो ये हमसे पूछा, क्या पूछा है? चेंज इन पॉजिटिव ऑफ बिट्स in 4 figure above follow a sequence following the same sequence which of the following below should appear the fifth figure. फिफ्थ फिगर में क्या होगा? ये हमारे पास इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये भी क्रॉस हो गया, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, ये क्रॉस हो गया, ये भी इस प्रकार से, ये क्रॉस हो गया. तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्रॉस फिर सीधा सीधा क्रॉस फिर सीधा. तो यहाँ पे ऐसा वाला क्रॉस होगा और ये सीधा होगा. तो क्रॉस ऐसा वाला कहाँ पे है? ये वाला है आंसर. फीडिंग कम्प्रीहेंशन इसको रीड करना पड़ेगा. रीड करने के बाद आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या होगा. एज पर द पैसेज व्हाट रोल फिलोसफी. पढ़ने के 2 ऑप्शन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने देखो, एग्जाम में जब टाइम ऐसे ही करना चाहिए. क्वेश्चन को पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा उसको देखना चाहिए और उसका जगह खोजना चाहिए. एज पर द पैसेज व्हाट रोल फिलोसफी प्ले. रोल ऑफ द फिलोसफी बीइंग अनसर्टेनिटी टू लाइफ. फिलोसफी लीड टू क्वेश्चन टू विच ओनली इनकम्प्लीट आंसर कैन बी गिवन. फिलोसफी गिव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इरेडिकेट लिमिटेड नॉलेज. फिलोसफी लीड्स टू क्वेश्चन टू विच ओनली इनकम्प्लीट आंसर कैन बी गिवन. फिलोसफी बीइंग अनसर्टेनिटी टू लाइफ. देखो फिलोसफी क्या बोलती है? फिलोसफी बोलती है to such a man world tend to become definite. Okay, philosophy greatly increase our knowledge as to what that may be. ठीक है, तो feeling of certainty while diminishing our feeling of certainty. तो uncertainty को कम करता है, ये लाता नहीं, अनसर्टेनिटी कम करता है. सो डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इरेडिकेट लिमिटेड नॉलेज. उसके बाद रसल सेइंग, यही वाला स्टेटमेंट है क्या? अच्छा ये फिलोसफी वाला है. इसमें रसल क्या बोलना चाहते हैं? मैन विथ फिलोसफी लिव्स इम्प्रिजन्ड विथ लिमिटेड बिलीफ. जो गलत लगा तो गलत है. अ मैन विथ फिलोसफी लिव इम्प्रिजन्ड, भाई पिंजरे में नहीं रहता. फिलोसफी तो पिंजरे से बाहर रहेगा ना. फिलोसफी तो ये है, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ये गलत है. फिलोसफी हेल्प ईच इंडिविजुअल टू ब्रॉडन देयर हॉराइजन ऑफ नॉलेज एंड पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है. फिलोसफी हेल्प पीपल टू कोऑपरेट इन द सोसाइटी. कोऑपरेट होने की बात नहीं हो रही है, इसको जो हॉराइजन है खुद की बात हो रही है, खुद की. ओके ये वाला पैसेज है. इसमें हमारे पास क्या है देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेक्योरिटिक मेथड. सेक्योरिटिक मेथड के लिए यहाँ पे क्या है? गलत पूछा है. इट इज़ अ डिस्कशन ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग्स पीपल विथ लर्निंग माइंडसेट. यस, ओपिनियन अमॉन्ग्स पीपल. अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ टॉपिक बेटर बाय एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, ये भी सही है. अ मेथड ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड क्रिटिसाइजिंग द ओपिनियन ऑफ अदर. भाई ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है. नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये जो अपने पास माइंड बोल रहा है, रसल ने बोला सेक्योरिटिक मेथड मतलब हर चीज़ को जो स्टूडेंट लर्न करता है ना, हाउ एंड वाई पूछ के,
डॉट नाइटली इम्पैक्ट नॉलेज, बट ऑल्सो ये प्रोवोक करता है क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी को ये प्रोवोक करता है. इट इज़ अ मेथड दैट स्टिमुलेट माइंड एंड एक्सपोज प्रिजम्पशन, बिल्कुल सही है, बट इट इज़ नॉट क्रिटिसाइजिंग अदर, ये बात नहीं करते यहाँ पे. Okay, what is teaching process that teacher use in Socratic method? Asking question to student in order to help them understand the answer and the logic. By delivering monologues to the student, help them learn better. Monologues नहीं देंगे भाई उनको. By asking question from the student to test their knowledge on the subject. No. क्वेश्चन की नॉलेज नहीं चेक करना है हमको. आस्किंग क्वेश्चन आस्क के हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे. हेल्प देम अंडरस्टैंड द आंसर एंड द लॉजिक. ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ वाला है. वाई डू कंपनीज हैव ह्यूज इन्वॉल्वमेंट इन द पब्लिक बियरिंग केयरलेसली विथ मनी? कंपनीज वांट टू डिसाइव द पब्लिक एंड स्टील मनी फ्रॉम देम. ये तो चोरी करने वाली बात हो गई. कंपनीज वांट टू ल्योर द पब्लिक इनटू स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी परचेज, हो सकता है. कंपनीज वांट टू हेल्प द पब्लिक इन्वेस्ट देयर मनी इन द राइट प्लेस. नो, राइट प्लेस कंपनी चाहेगी तो कैसे करेगा. कंपनीज वांट टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक टू द प्रोडक्ट विच कैन बी यूजफुल फॉर देम. नो. इसमें क्या है, अजीबोगरीब बात की गई है. यहाँ पे बोलते हैं कंपनीज ने क्या बोला, मार्केटिंग साइकोलॉजिस्ट, मतलब वो अननेसेसरी चीज़ों पे जो बाई करते हैं. यहाँ पे भी अननेसेसरी चीज़ें लिखी हैं कहीं पे. अननेसेसरी चीज़ें देखो, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग, ठीक है ना, और कैजुअल स्पेंडिंग. तो यहाँ पे भी अननेसेसरी या फिर कैजुअल स्पेंडिंग की बात की गई है. व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टडी द मार्केटिंग साइकोलॉजिस्ट स्टाफ अंडरटेक. मार्केटिंग साइकोलॉजिस्ट, नगिंग ऑफ द चिल्ड्रन कैन हेल्प द पेरेंट ट्राई आउट न्यू स्टफ. नो. मार्केटिंग द टॉय अप्रोप्रिएट टू द चिल्ड्रन कैन इंक्रीज दियर सेल, बिल्कुल सी है. अगर हम ऐसे दिखाएंगे उसको कि बच्चे को खरीदने की जिद करें तो क्या होगा, उसका सेल बढ़ जाएगा. मोर चिल्ड्रन विजिटिंग द थीम पार्क वुड हेल्प द टॉय कंपनीज बिकम पॉपुलर. ऐसा नहीं बात की गई. यहाँ पे बात की गई कि नजिंग ऑफ चिल्ड्रन जो है ना, उनको इसलिए मार्केटिंग में चिल्ड्रन को लुभाया जाता है, पेरेंट्स को नहीं. इसमें बात की गई कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो मार्केटिंग कंपनीज मेनली ऑफ द डॉलर स्पेंड कंप्लीटली, यहाँ पे चिल्ड्रन डिड नॉट, देखो ये आल लिखा हुआ है, ठीक है. इसीलिए क्या करते हैं, ये चिल्ड्रन को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. व्हाट डिड ऑथर इंट्रोड्यूस इन द पैसेज विथ क्वेश्चन. व्हाई डिड ऑथर इंट्रोड्यूस द पैसेज विथ क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन जो था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के साथ क्या किया. आर यू बॉर्न विथ इनेट नॉलेज. क्वेश्चन पूछा, क्यों पूछा, टू गेट द रीडर इंट्रोड्यूड इनटू द रीड द पैसेज. नहीं भाई, मजा आ जाए रीड, ऐसे नहीं. फॉर द रीडर टू गेट फेयर आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, टू गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द रेस्ट ऑफ द पैसेज. द ऑथर हैज नो पर्टिकुलर इंटेंशन. For the reader to get a fair idea about the subject of the passage, to get the answer to this question in the rest of the passage. Yes, ये आंसर मिलेगा आपको. आंसर की बात नहीं, इनडायरेक्टली अलग बात करेंगे. टू रीड करेंगे, रीडर टू गेट फेयर आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज. What can be inferred from Joclo argument? One should use one's sense to experience things. One can experience something which is entirely not true. ये हो सकता है. One can use one's sense to experience things. We should have more sensory based education than theoretical ones. इसकी बात नहीं की गई यहाँ पे. One should have की बात. One can experience something that is entirely not true. 7 नंबर का यहाँ पे पूछा है हमसे, रॉन्ग टर्म क्या है. तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है ना, ये वाला है. बिकॉज 84 112 है, उसमें हमने क्या किया, हमने सपोज किया 112 को माइनस किया 84 से, तो क्या बचा, 12 में 4 बचेगा 8, 0, 10 में 8 बचेगा 2, 28 बचा. 28 कैसे आएगा, 177 माइनस किया 112 को, 560, 65 कैसे आएगा,
लॉन्ग टर्म इसमें 524 लग रहा है, बट क्यों है इसको देखा जाएगा, मार्क कर देते हैं इसको। उसके बाद है ये क्वेश्चन गलत हो गया। कौन सा क्वेश्चन गलत है यहाँ पे? ये वाला 5 है, वही तो मैं बोल रहा था। यहाँ पे ना ये देखो 0 तो है यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे 5 होगा, तो 0 हो चुका है। और एक क्वेश्चन था ना, कौन सा नंबर था वो? 7 नंबर का, 7 नंबर क्वेश्चन था वो। इसका आंसर, हाँ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्यों है ये। अच्छा, इसलिए है क्योंकि 3 का क्यूब, 3 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। 84 प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 करने से क्या हो रहा है, ये 112 हो रहा है। फिर 112, इसका नेक्स्ट नंबर में हमने क्या किया, इसी के नेक्स्ट नंबर में क्या, 4 का क्यूब प्लस 1 करने से क्या हो रहा है, 177 हो रहा है। फिर 177 में हम क्या कर रहे हैं, 5 का क्यूब प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये 303 हो रहा है। फिर 303 में हम 6 का क्यूब प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये 520 हो रहा है, 524 नहीं हो रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा।